Hello, cuties. I know that you're scrolling through Instagram and still wondering how creators make money while you're still wondering how to start. What if I told you that brands are looking for creators just like you who doesn't have a much following but can make a good quality review content? In this video, I'm breaking down everything that you need to know as a UGC creator. Start your journey from landing the first brand deal and getting paid for your content. If you have zero experience, then please stick around because I'll be sharing pro tips that you need to follow as a UGC creator. And I'll be sharing the tricks that no one talks about. Take some snack and sit down because this is going to be a long video that no one shares about. So before further ado, let's start with the video. If you haven't watched my first UGC guide video, then please go and watch it, and then later you can watch this video. I have explained everything about UGC, but if you are still confused what is UGC, then this is what UGC is. And also this video is going to be half English and Hindi because सबको क्लियर नहीं होता है and I need everyone to understand everything what I am explaining to you. So मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी and I'm not very good at Hindi because I'm Marathi, but I hope that you cope with me. So my first question is, how is UGC different from influencer marketing? तो UGC क्या होता है? UGC रिव्यू बेस्ड वीडियो कंटेंट होता है, तो उसके लिए हमें इन्फ्लुएंसर होना ज़रूरी नहीं है. इन्फ्लुएंसर्स आर दोज हु इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट. UGC में क्या होता है? UGC में ब्रांड सेंड यू अ प्रोडक्ट फॉर द रिव्यूइंग. मतलब आप खुद वो प्रोडक्ट यूज़ करोगे और उसके बाद उसका हॉनेस्ट रिव्यू सेंड करोगे. सो दैट्स UGC. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और UGC में ये डिफरेंस होता है दैट UGC is a review based content and influencer marketing is different because influencer marketing में you influence people to buy the certain product. Can you start UGC without showing your face, and is it a career based? Then definitely yes it is, because ऐसे बहुत मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो फेसलेस क्रिएटर्स हैं एंड दैट कंटेंट इज़ रियली गुड. दे डू गेट पेड कोलैबोरेशंस, उनको भी पेड कोलैबोरेशंस मिलते हैं, बाटर कोलैबोरेशंस भी मिलते हैं एंड दैट कंटेंट इज़ वेरी वेरी गुड. इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप फेसलेस क्रिएटर हो तो आपको कोई कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा. ब्रांड्स मोस्टली देखते हैं कि कोई फेस क्रिएटर हो तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है उनके लिए, बट फेसलेस क्रिएटर ऑल्सो डू अ गुड अमाउंट ऑफ work in this. What matter is the aesthetic content, the quality of the content and how they promote the product. कितना informative वो product है, मतलब आप कैसे अपने product को showcase कर पा रहे हो. अगर आप वो सब अच्छा करोगे then you will get collaborations. तो it is not necessary कि आपको face creator ही होना चाहिए to start UGC. How do brand find UGC creators and why do they pay for content? Brands को UGC creators कैसे मिलते हैं? So उसके लिए we have collaboration forms, group होते हैं या फिर emails आते हैं. I'll mention some of the agencies that you can check out and you can follow them and वो फॉर्म सेंड करते हैं, वहाँ से आपको कोलैबोरेशंस मिल सकता है. या फिर कोई एजेंसी को आपका काम अच्छा लगा है तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए भी रखते हैं, जहाँ से आपको कोलैबोरेशन फॉर्म्स या फिर कोई इवेंट होगा तो उसका वो डायरेक्टली आपको प्रपोजल सेंड करते हैं एंड यू नीड टू फिल दैट आउट. आपके डिटेल्स सेंड करने होते हैं एंड यू गेट कोलैबोरेशन. लास्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विच आई मिस्ड बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल इशूज. मुझे फ्लिपकार्ट शूट के लिए इनवाइट आया था. आई वोंट रिवील दैट बिकॉज मैं गई नहीं वहाँ पे ड्यू टू माई पर्सनल इशूज, बट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट वॉज अ पेड कोलैबोरेशंस. बट इट्स ओके, आई होप कि मुझे आगे भी मिले एंड इट विल. तो आपको पेड कोलैबोरेशंस के भी फॉर्म्स मिलते हैं, बाटर कोलैबोरेशंस के भी मिलते हैं एंड यू शुड अवॉइड रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशंस बिकॉज वो मोस्टली फेक होता है. बिकॉज वो बोलते हैं हम पे करेंगे आपको बाद में अमाउंट, बट दे डोंट पे दैट एंड वो थोड़ा रिस्की भी होता है. सो यू शुड अवॉइड दैट
those type of collaborations. आप जो अपना काम पोस्ट करते हो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके थ्रू आपको एक पिचिंग का एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है. आप डायरेक्टली ब्रांड्स को पिच कर सकते हो या फिर आप एजेंसी के थ्रू काम कर सकते हो. ऐसे करके ब्रांड्स को पता चलता है कि ऐसा ऐसा कोई है एंड दे डू दिस वर्क. देन यू कैन गेट कोलैबोरेशंस थ्रू दैट. एंड ब्रांड्स वही कंटेंट को पे करते हैं जो उनके प्रोफाइल को सूट करता है. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप जो कंटेंट बना रहे हो वो ब्रांड्स के हिसाब से हो, तो ही यू विल गेट पेड, नहीं तो मोस्टली नहीं होता. वेयर शुड यू पोस्ट योर यूजीसी कंटेंट टू अट्रैक्ट ब्रांड्स? So I use Instagram and YouTube. These are my two platforms that I use to post my UGC content. Mix type of creator niche है मेरा, but it depends on you. अगर आप ये handle कर सकते हो then you can go for that. So वैसे platforms तो बहुत है. You can also use LinkedIn for that, but for basic and for the start you can start with Instagram. मैंने भी खुद पहले Instagram से start किया. I got my paid collab, I got my first collab when I had something 56 followers, and I also get paid collaborations अभी. and उसके पहले I did a Korean collab, मतलब कोरिया से मुझे एक PR पैकेज मिला था. It was from Mixun. तो तब मेरे something 500 और 600, I don't remember, इतने कुछ followers थे. and अभी I'm working hard for it and I'm getting paid for my work. I'm also working with a German company, skincare company, something like that. And उनके साथ भी मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट चालू है which is for lifelong. Touch wood that it's going great and वो paid collaborations मेरा ongoing है. So you can use Instagram and उसके बाद आप YouTube पे भी आ सकते हो. तो पहले आप Instagram पे अपना फोकस करो and once you are stable in Instagram then you can go on YouTube. Because इंस्टा पे थोड़ा रीच आने के बाद अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे देन इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. जैसे कि मैंने अभी किया, मैंने पहला मेरा इंस्टाग्राम 700, 780, 50, 780 तक मैंने ग्रो किया. एंड उसके बाद आई ओपन माई यूट्यूब चैनल विच आर यू लुकिंग एट नाउ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड ऐसे ही सपोर्ट करो. सो अभी मेरा YouTube भी चल रहा है, तो ऐसे ही एक एक स्टेप लेके एक एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करके ग्रो करना. सब एक ही टाइम पे मत करना बिकॉज chaos हो जाएगा. हाउ कैन यू राइट अ किलर पिच टू लैंड योर फर्स्ट UGC डील? उसके लिए यू कैन रेफर दीज 2 pitching ideas. I'll share more if you can DM me on my Instagram page, then I'll share more 2 of them. आप ये 4 pitch ट्राई करना एंड मेक श्योर कि आप जो भी ब्रांड को पिच करते हो तो पहले आपका इंट्रोडक्शन बराबर देना, ब्रांड का नेम बराबर मेंशन करना, थोड़ा एडिटिंग करना एज पर द ब्रांड पेज, मतलब उनके हिसाब से पिच थोड़ा एडिट करना और उनको सेंड करना. सब जगह सेम पिच मत करो बिकॉज वो थोड़ा नहीं चलता है. एंड यू नीड टू हैव डिफरेंट पिच फॉर डिफरेंट ब्रांड्स. मतलब ब्रांड के हिसाब से, ब्रांड के पेज से देखकर आप पिच बना सकते हो. थोड़ा सा एडिटिंग करना होता है, थोड़ा 2-3 लाइन का सेंटेंस वगैरह चेंज करके यू कैन मेक द पिच एंड यू कैन सेंड इट टू ब्रांड. अगर आपको बार्टर कोलैबोरेशन को पेड कोलैबोरेशन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको पिच चाहिए होगा, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM करो. बट फॉर दैट यू नीड टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देन ओनली आई विल सेंड यू द पिच. How much can a beginner UGC creator actually earn? So when I started my paid collaboration, first paid collaboration, it was for 3,000 rupees. Yes, it depends on your profile. आप कैसे ब्रांड का काम कर रहे हो, आप कैसे उनके डिलीवरेबल्स पूरे कर रहे हो. एंड वो भी UGC कंटेंट था जो मैंने खुद के पेज पे नहीं डाला है, वो ब्रांड के पेज पे है विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज इट्स नॉट अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस. सो आपको वो सब ध्यान में रख के ही काम करना होगा. जो ब्रांड ने लिखा है स्क्रिप्ट में वैसे ही काम करना होगा, तो ही आपको पेमेंट मिलेगा. एंड पेमेंट का टाइमलाइन होता है, मतलब हमें UGC क्रिएटर्स को मोस्टली 1 month, 2 months या फिर मुझे 1 month में ही मिला था पेमेंट. बट इट डिपेंड्स ऑन योर
वर्क, जो भी आपका काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अलग अलग ब्रांड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई 90 डेज, कोई 24 आवर्स, ऐसे भी कोलैबोरेशंस मिलते हैं। मुझे 24 आवर्स वाला भी था, जो मतलब मुझे वहाँ इवेंट में जाना था, शूट किया। आई ट्राई टू शेयर सम पिक्चर्स यो। सो मैं उनके इवेंट में गई थी, स्वीट ट्रूथ करके ब्रांड का नाम था। तो उनकी तरफ से आई गॉट एन बिग अपॉर्चुनिटी टू गेट फीचर्ड ऑन बिग पेजेस, सो that's a good thing and touch wood for that again. So as a beginner, अगर आपका काम बहुत अच्छा होगा तो you can get payment easily। मतलब अगर आप 5000 के ऊपर से भी स्टार्ट करोगे तो भी मिल जाएगा। पोस्ट के लिए यू कैन गो फॉर 500। अगर ऊपर व्यूज आ रहे हैं तो आप 500 के ऊपर पोस्ट के लिए भी बोल सकते हो। बट रील्स के लिए अगर आपका कंटेंट, जितना मेहनत आप ले रहे हो उतना ही आपका पेमेंट, मतलब जो अमाउंट होगा, कमर्शियल्स होगा, वो उतना होना चाहिए। तो मेरा जितना काम था उसके हिसाब से आई गॉट 3000 रुपीज़। शुड यू वर्क विद ब्रांड्स ऑन फ्री कोलैबोरेशंस और ओनली पेड डील्स? तो अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन डू बार्टर कोलैबोरेशंस एज आई सेड, बट रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशंस को अवॉइड करना, बिकॉज दैट्स नॉट द केस टू डू, बिकॉज दैट्स वेरी रिस्की एंड दे टेंड टू नॉट पे यू लेटर। जो बोलते हैं कि बाद में पेमेंट करेंगे, वो करते नहीं हैं। तो आप पहले बार्टर कोलैबोरेशंस के ऊपर फोकस करें, एंड जब आपको अच्छे खासे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस मिल जाए, जब आपको लगे कि आपका काम ऐसा है कि आपको उसका पेमेंट मिलना चाहिए, कमर्शियल्स मिलने चाहिए, तो आप ब्रांड्स को बोलना कि आई कांट डू बार्टर कोलैबोरेशंस एज ऑफ नाउ बिकॉज आई डोंट थिंक सो माई वर्क डिजर्व टू गेट ओनली फ्री प्रोडक्ट्स एंड not getting paid for it is not my case now because I need to upgrade and आपको paid collaborations करना है। तो उस pitch के लिए आप मुझे Insta पे DM करना and I'll send you the pitch. How do you price your UGC content correctly? So this is the way you can price your UGC content correctly, और वैसे ही आपके जो भी paid collaborations होंगे उनका प्राइसिंग वैसे ही करना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी काम आप कर रहे हो वैसे आपको पेमेंट मिले। पहले मुझे भी नहीं ये सब पता था और मैं कुछ भी प्राइस बोल देती थी ब्रांड्स को या फिर एजेंसीज को, बट अभी मैं वैसे नहीं करती। मैं अभी जो भी ऑफरिंग्स देती हूँ उसका मैं प्राइसिंग करेक्टली करती हूँ। हाउ डू यू बिल्ड लॉन्ग टर्म ब्रांड पार्टनरशिप इंस्टेड ऑफ वन टाइम डील्स? तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आपका काम अगर अप टू द मार्क होगा, आपका कंटेंट जो आप दे रहे हो ब्रांड्स को या फिर एजेंसीज को फॉर यूजीसी वर्क या फिर कोई भी नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन, तो अगर वो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा तो ब्रांड्स एंड जो एजेंसीज होते हैं वो आपको रिमेंबर रखते हैं, आपको उनके लिस्ट में रखते हैं एंड वो आपको अगले कोलैबोरेशंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो वैसे आप लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस उनके साथ कर सकते हो। बट अगर आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर नॉट मेंटेनिंग द रूल्स एंड द डेकोरम ऑफ द कोलैबोरेशन, द कॉन्ट्रैक्ट, देन आपको कोलैबोरेशंस मिलना मुश्किल है। बट अगर आप जैसे ब्रांड्स ने कहा है वैसा करोगे तो आपको कोलैबोरेशंस मिलेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। कैन यू टर्न यूजीसी इनटू अ पैसिव इनकम स्ट्रीम? तो डेफिनेटली येस यू कैन, बिकॉज थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग आजकल अगर आप देख रहे होंगे विश लिंक, लीला, ऐसे सब करके एप्स है और जो आपको अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न करने के लिए मौका दे रहे हैं। तो यू कैन यूज़ दैट। आई कांट यूज़ दैट राइट नाउ बिकॉज मेरी उतनी फॉलोइंग्स नहीं है, बट डेफिनेटली वंस आई गेट टू दैट फॉलोइंग मैं भी उनके ऊपर जाके खुद को रजिस्टर करूँगी एंड उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्ट माई अफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज नाउअडेज यू कैन अर्न डेफिनेटली अ गुड अमाउंट थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। यू कैन प्रमोट अ प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट के लिए आप जो भी लोग आपको पूछते हैं कमेंट्स में लिंक या फिर कुछ भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और आप उनको वो लिंक सेंड करते हो तो उस लिंक के थ्रू आपको कुछ अमाउंट का कमीशन मिलता है, तो उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द केस, तो इट्स अ गुड इनकम स्ट्रीम। What's the future of UGC and how you can stay ahead of trends? So the future of UGC is really good because it's upgrowing. हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए होता है कोई भी प्रोडक्ट का, बिकॉज लाइक हमें कोई बोले कि आप ये खरीद लो और आप खरीद लोगे और उसके बाद अगर उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ देन इट्स रियली बैड थिंग।
तो ऑनेस्ट रिव्यू इज़ रियली अ मस्ट फॉर एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो यूजीसी इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर दैट, बिकॉज यूज़र जनरेटेड कंटेंट का वही काम होता है कि आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे। जो भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस होगी तो उसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है, बिकॉज इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड उसके बाद उसका रिव्यू शेयर किया जाता है, राइट। तो यूजीसी का फ्यूचर इज़ रियली ग्रेट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। एंड आपको ट्रेंड्स के साथ कैसे चलना है और कैसे समझेगा आपको कि ये ट्रेंडिंग है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो वहाँ पे यू नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग, बिकॉज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग डांस, ट्रेंडिंग मीम्स या फिर ऐसा कुछ ना कुछ आते ही रहता है। आपको उसी हिसाब से चलना होता है, बिकॉज उसी हिसाब से अगर कोई कंटेंट बनाओगे, अगर कोई म्यूज़िक है तो उसको अगर आप यूनिक वे में शोकेस कर रहे हो और उसमें कुछ अलग ही करके दिखा रहे हो, कोई स्टोरी टेलिंग वगैरह कर रहे हो, देन इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग। स्टोरी टेलिंग एज यू नो कि अभी बहुत चल रहा है, लोगों को स्टोरी टेलिंग से बहुत इन्फॉर्मेशन और सोक इन करने की आदत लग चुकी है, एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। तो आप वैसे ट्रेंड्स के ऊपर फोकस कर सकते हो जो अभी बहुत चल रहे हैं एंड विच आर बूमिंग राइट नाउ। तो वैसे ट्रेंड के ऊपर आप फोकस करोगे तो आप सच में सबके आगे जाओगे, एंड आपको भी फॉलोवर रीच, एंगेजमेंट रीच या फिर जो भी रीच आपको चाहिए वो मिल ही जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ये इन्फो आपको अच्छी लगी हो जो भी मैंने शेयर की हो, एंड यू थिंक कि अगर ये अच्छी हो देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जिनको यूजीसी स्टार्ट करना है या फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो उनको भी हेल्प हो जाए कि समझने के लिए ये सब कैसे होता है, हाउ टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग एल्स। अगर आपको और कोई भी डाउट हो देन आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे डीएम कर सकते हो एंड आई विल सॉल्व योर डाउट देयर। और मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी हाउ टू गेट पेड कोलैबोरेशंस एंड आप शूट कैसे कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।